friends, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study some natural phenomena. Ready, steady, start. Look at the following picture and identify these natural phenomena. Now ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know: lightning, electrical charges, types of charges, charging an object, transfer of changes, the story of lightning, safety during lightning, earthquakes, measuring intensity of earthquake, destruction caused by earthquakes, protection against earthquake. The natural events that occur in nature due to natural reason are called natural phenomena. These are not under our control and are inevitable. All natural phenomena do not cause harm to human beings. Winds, storms and cyclones are some examples of natural phenomena that you have learned in previous class. In this chapter, we shall study about two other natural phenomena, lightning and earthquake. We will also discuss about corrective measures and the steps taken in minimize the magnitude of destruction. Okay, देखिए natural events जो कि नेचर से ही अफेक्ट करते हैं, अकर होते हैं, ये नेचर से बनते हैं, उन्हें हम नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं. ओके, जो नेचुरल फिनोमेना होते हैं उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ओके, जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं वो हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. ओके, जैसे कि विंड्स हैं, स्टॉर्म्स है, साइक्लोन्स है, ये एग्जांपल्स हैं नेचुरल फिनोमेना के. ओके, प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा है इनके बारे में. लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक नेचुरल फिनोमेना है. ओके, नाउ लाइटनिंग. You must have seen lightning sparkles in the sky during a thunderstorm. It is a natural phenomena. In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist and politician, showed that due to friction between the clouds and winds, clouds get electrically charged. Okay, देखिए आप लोगों ने देखा होगा लाइटनिंग और स्पार्कलिंग जो स्काई में होती है थंडरस्टॉर्म के टाइम पर. ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है. ओके, 1752 में एक बेंजामिन फ्रैंकलिन के थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं वो. ओके, ये पॉलिटिशियन थे और इन्होंने ये चीज़ शो की थी कि फ्रिक्शन की वजह से क्लाउड्स और विंड में फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं. ओके, देयर इज इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द क्लाउड्स. दिस प्रोड्यूसेस अ स्पार्क विच वी see as lightning. They demonstrated this with the famous kite experiment. These sparks are produced due to the flow of the electric charges through air. Similarly, lightning is also an electric sparks on a large scale that occurs to the massive flow of the electrical charges that gets accumulated around the cloud. Let us find out the reason how sparkle and lightning occur by understanding the nature of these electrical charges. Okay, देखिए अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस मतलब कि क्लाउड्स और विंड जब आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं. ओके, तो उन्होंने ये प्रोड्यूस किया था फेमस जो फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट है, काइट एक्सपेरिमेंट, उसके थ्रू उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था. ये जो स्पार्क्स है ये प्रोड्यूस होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू और लाइटनिंग बोलते हैं उसको. ओके, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट. लाइटनिंग रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एज अ लैम्प एक्सेट्रा. लाइटनिंग ऑन द अदर हैंड इज अ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. ओके, देखिए लाइटनिंग जो है ये अरेंजमेंट होती है आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेज की, जैसे कि लाइट की, जैसे कि है लैंप. ओके, लाइटनिंग जो होती है ये दूसरे हाथ में क्या होती है, नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है थंडरस्टॉर्म में. ओके, इलेक्ट्रिकल चार्जेस. लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस. हम फॉलोइंग एक्टिविटी के थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, होम एक्टिविटी 1. Objective: to demonstrate the formation of electrical charge, materials required: 3 balloons, comb, bits of paper. Procedure: take a plastic comb and rub it on your hair several times. Now hold the comb near tiny bits of paper. You will observe that the paper bits get attached towards the comb. Take 2 more inflated balloons and rub them on your dry ear. Hang both the balloons close to other as shown. You will observe that these balloons try to push each other away to repel each other.
Take an inflated balloon and rub it in your dry hair. Bring it close to the wall of your room. You will observe that the balloon sticks to the wall and remains stuck there for a quiet while. Inference: in all the above cases, the comb and the balloon acquire the electrical charge when rubbed when dry hairs. ये आप खुद से करेंगे. Now, the charge that develops on them is static as it does not move on the force with which the comb attracts the bits of paper or the balloons repel each other is known as electrostatic force. The force exists only between two charged objects. Electrostatic force can be attractive or repulsive. Okay, देखिए जो चार्ज डेवलप होता है उसे हम स्टैटिक चार्ज जो डेवलप होता है वो कभी भी मूव नहीं करता और फोर्स नहीं चाहिए होती है. उसे जो कॉम्ब से बिट ऑफ पेपर को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं. बलून जो है वो रिपेल करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. ये जो फोर्स है ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बीच में. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होती है. ओके, टाइप्स ऑफ चार्जेस. वी नो दैट ऑल मैटर इज made up of atom and atoms are made of protons, electrons and neutrons all together. Protons are positively charged, electrons are negatively charged and neutrons do not have any charge at all. Okay, हमें ये पता है कि जितने भी मैटर्स होते हैं एटम्स जो बनते हैं वो प्रोटॉन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन से बनते हैं मिलकर. ओके, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. ओके, in the normal state an atom consists equal number of protons and electrons, so it has no overall charge and is electrically neutral. An atom gains or loses charge if there is a imbalance in its number of protons and electrons. देखिए normal state जो होता है उसमें एटम जो है वो equal number के protons और electrons contain करता है तो उसके overall charge जो होते हैं वो कितने होते हैं? electrically neutral होते हैं. ओके, जो एटम gain करता है और lose करता है चार्ज वो imbalance करते हैं इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को. ओके, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस. द charge on an atom is positive if the number of protons exceeds and the number of electrons. When the number of protons is less than the number of electrons, then the charge ऑन द एटम इज नेगेटिव. ओके, देखिए जो चार्ज होता है एटम में वो पॉजिटिव होता है या फिर प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एक्सीड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में. ओके, नाउ जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेस होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से तब जो चार्ज है एटम का नेगेटिव आता है. ओके, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. देखिए जब दो बॉडीज एक साथ रब की जाती हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में. ओके, व्हेन एन ebonite rod is rubbed with fur, the electrons from the fur are transferred to the ebonite rod and therefore the ebonite rod becomes negatively charged due to the gain of electrons while the fur becomes equally positively charged due to the deficit of same number of electrons. Okay, देखिए जब इबोनाइट रोप जो रब किया जाता है फर के साथ तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर से ट्रांसफर हो जाते हैं इबोनाइट रोड में और जो इबोनाइट रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें आए हैं उसकी वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. लेकिन फर जो है वो इक्वली पॉजिटिवली चार्ज रहता है उसकी डेफिसिट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. ओके, व्हेन अ ग्लास ऑफ रोड इज रब्ड विद अ सिल्क द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रोड आर transferred to the silk. This is because in glass the electrons are less tightly bound than the silk. Thus, due to loss of deficit on electrons, the glass rod becomes positively charged, while due to gain of equal number of electrons, the silk becomes negatively charged. देखिए जो ग्लास रोड है वो जब रब किया जाता है सिल्क से तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रोड से ट्रांसफर हो जाते हैं सिल्क में. ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो ग्लास है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं सिल्क में. ओके, तो इसकी वजह से जो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो ग्लास रोड में पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. ओके, नाउ अब इसकी वजह से क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. नाउ चार्जेस डेवलप ऑन अ बॉडी कैन बी डिफेक्टेड इन द इलेक्ट्रोस्कोप. देखिए जो चार्जेस डेवलप होते हैं किसी भी बॉडी पे वो डिटेक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा. ओके, now the electric charges formed by rubbing are static, which means they do not move themselves.
When electric charges move, they constitute an electric current. Let us perform an activity to identify types of nature और charges. देखिए इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं जब वो फॉर्म किए जाते हैं तो वो रबिंग, जैसे कि रब किए जाते हैं, उसे फॉर्म किया जाता है किस तरीके से, जब रब किया जाता है स्टैटिक में, ओके, विच इसका मतलब क्या है कि वो खुद से फॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट होता है, ओके। और नाउ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ओके, लैब एक्टिविटी 2। ऑब्जेक्टिव to understand the nature of charges, materials required 2 glass rods, silk cloth, thread, 2 plastic straws, combos of scale and wool. Procedure: case 1, take 2 glass rods and rub them with silk cloth, suspend them freely with the help of a thread as shown in the figure, bring them close to each other and observe. Case 2, repeat the same activity as above using straws in place of glass rods and rub them with wool. Observe the record. Case 3, keep the first straw suspended freely. Now bring the glass robe rubbed with the silk cloth near the suspended straw and observe. Observation: for case 1, 2 glasses rods repel each other and move apart for case 1, and we will observe that 2 plastic straws repel each other, and for case 3 we will observe that the glass rod and plastic straw attract each other. Inference: there are 2 types of charges, like charges repel whereas unlike charges attract each other. ये आप खुद से करेंगे. Now thus it is convention that a glass rod when rubbed with a silk cloth acquires positive charge and a plastic straw, comb और scale when rubbed with wool acquires negative charge. देखिए ये कन्वेंशन है कि जो ग्लास रोड को रब किया गया है सिल्क क्लोथ के साथ वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और एक प्लास्टिक स्ट्रो जो कि कॉम्ब या फिर स्केल के साथ रब की गई है वो एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज. Now, thus we conclude that, तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि there are 2 types of charges, positive charge and negative charge. 2 bodies repel each other if they have like charges either positive or negative. 2 bodies attract each other if they have unlike charges. The charges which are produced by rubbing 2 objects are called static charges. When these static charges flow, they form electric current. The force exerted by charges objects on each other is called electrostatic force. Okay, देखिए जो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, जो 2 बॉडीज रिपेल करती है एक साथ, उनके जो चार्जेस होते हैं या तो पॉजिटिव आते हैं या तो नेगेटिव आते हैं. ओके, जो बॉडीज एक साथ अट्रैक्ट करती हैं वो अनलाइक चार्जेस की होती है. ओके, और ये जो चार्जेस होते हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं रबिंग 2 ऑब्जेक्ट्स को जब रब किया जाता है तब इसको हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं. ओके, ये स्टैटिक चार्जेस जो है ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. ओके, ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं चार्जिंग ऑब्जेक्ट से अपने एक दूसरे पर, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. नाउ चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट. हियर An electrically neutral object can be charged by following methods. एक electrically neutral object जो होता है उसे किस तरीके से चार्ज किया जाता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, तो इन 3 मेथड से उसे चार्ज किया जाता है. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग. देखिए, when we rub an object with another object, we produce friction between them and causes transfer of electrons from one object to another. While rubbing, both the objects acquire charges which are equal in magnitude but opposite in nature. Thus, the process by which an object gets electrically charged when rubbed against a surface is called a charging by friction. देखिए, जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं एक दूसरे के बीच में. ओके, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. तो रबिंग के टाइम पर दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों में चार्जेस आते हैं जो कि इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट होते हैं नेचर में. ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट का जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं जब उन्हें रब करते हैं एक दूसरे से अगेंस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बलून गेट्स चार्ज व्हेन इट इज रब्ड ऑन ड्राई हेयर एंड व्हेन द ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क, द glass rod acquires a positive charge and the silk cloth acquires a negative charge. Similarly, the ebonite rod acquires a negative charge and the wool acquires a positive charge when rubbed together. Okay, देखिए एग्जाम्पल बताया गया, एक बलून को अगर आपने अपने हेयर से रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाएगा. ओके,
और वो जो चार्ज होगा वो ग्लास रोड को अगर रब करेंगे सिल्क से तो वो भी चार्ज हो जाएगा। ओके, ग्लास रोड जो है वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क जो है वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से इबोनाइट रोड को जब रब किया जाएगा तो वो एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज वूल से, और वूल को जब रब किया जाएगा इबोनाइट रोड से तो वो एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन। We can also change an electrically neutral object by touching it with the charge object. Charging by conduction involves the transfer of charge from an electrically charged object to an electrically neutral object by making a contact. This is also known as charging by contact. In this method of charging an object, the object being charged acquires some nature of charge as that on the चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं उनको टच करके चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, अब देखो चार्जिंग कंडक्शन जो है वो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर चार्ज जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं उनका ट्रांसफर, और फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होते हैं उसकी तरह वो कॉन्टैक्ट में आते हैं। ओके, इसको चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बोला जाता है। इस मेथड में जो चार्जिंग होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है नेचर के चार्जेस। ओके, जिसे चार्ज ऑब्जेक्ट कहा जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय एक्टिविटी गिवन इन द नेक्स्ट पेज। एक्टिविटी के थ्रू इसे समझेंगे। लैब एक्टिविटी 3 ऑब्जेक्टिव टू डिमॉन्स्ट्रेट चार्जिंग बाय कंडक्शन मटेरियल्स रिक्वायर्ड hollow paper cylinder, paper rolled ebonite rod. Procedure: take a small hollow paper cylinder and hang it with a piece of thread. Take a charged ebonite rod, negative charge, and bring it near the hollow cylinder. Observation: in the first instance the cylinder gets attached towards the ebonite rod, but once the ebonite rod touches the paper cylinder it repels the cylinder. Inference: this shows that the paper cylinder acquires negative charges after conduction because of the torch. It happens because some negative charges is transferred from the ebonite rod to paper cylinder. ये आप खुद से करेंगे। Now charging by induction. The method of charging an uncharged object by bringing a charged object in close vicinity but not making a physical contact with the uncharged object is called charging by induction. It is also possible to charge an object without making a physical contact with the charged object. In this method of charging an object, the object being charged acquires a charge of opposite nature as that on the charged object. देखिए, जो मेथड होता है चार्जिंग का और अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स का वो लेकर आता है चार्ज ऑब्जेक्ट को क्लोज विसिनिटी के, लेकिन इनका जो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है तो उसे चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस में ये पॉसिबल होता है कि जो चार्ज किए गए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज किया जाए। ओके, और इस मेथड में जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट चार्ज एक्वायर करता है चार्ज ऑपोजिट नेचर से। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रोड है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर है। ओके, नाउ इसे कंडक्टिंग स्फेयर में चार्ज किया गया है। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन इस तरीके से किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ charges. An electric charge can be transferred from a charged object to an uncharged object easily through a metal conductor. An electroscope is a scientific instrument used to detect and measure charge. William Gilbert invented the first electroscope around 1600 CE. देखिए, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इजीली, किसके थ्रू? एक मेटल कंडक्टर के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए या फिर चार्ज को मेजर करने के लिए। विलियम गिलबर्ट जो थे उन्होंने पहला इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट किया था 1600 CE में। रिसर्च स्किल्स। One common example of charging by induction in daily life is operation of a touch sensitive screen on smartphone. देखिए, एक common example जो charging का है इंडक्शन का डेली लाइफ में वो है operation of a touch sensitive screen on smartphone. Okay, lab activity 4 objective to demonstrate working of an electroscope. Materials required: a wide method glass jar, a metal wire,
two thin aluminum strips 2 centimeter to 3 centimeter long and 1 centimeter wide, a piece of cardboard and a charged ebonite rod. Procedure: make a hole on the cardboard and through it insert the metal wire whose end is turned inwards into hook-like shape. Now hang the two aluminum strips on the end of the metal wire. Place the setup inside the glass jar and cover it with the cardboard such that the aluminum strips are inside the jar and one end of the metal wire is outside the jar shown in the figure. Bring the charged negative ebonite rod near the end of the metal wire which is outside the jar such that it touches it. Observation: the strips require a negative charge from the ebonite rod by the process of conduction and they repel each other like charges. It will also be observed that the greater the charge transferred, the wider will be the separation between the leaves strips. Inference: the amount of divergence in an electroscope is a measure of the amount of charge. If the divergence of metal leaves increases, it indicates that the body has a similar charge, and if the divergence decreases, it indicates that the body has an opposite charge. This is the principle used to make the electroscope. ये आप खुद से करेंगे. When a charged object releases its charges to an uncharged object or ground, the process is called discharging, and the process of transfer of charge from a charge object to the ground is called earthing. ओके देखिए, जब किसी भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है उसकी चार्जेस को एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ ग्राउंड में, ओके, या फिर ग्राउंड पे, ओके, इस प्रोसेस को हम डिस्चार्जिंग कहते हैं. और जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर करना चार्ज को एक चार्ज ऑब्जेक्ट से टू द ग्राउंड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं. ओके, टू डिटेक्ट नेचर ऑफ चार्ज, टू डिटेक्ट वेदर द चार्ज ऑब्जेक्ट हैज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज, एन इलेक्ट्रोस्कोप of known charge is used. An electroscope can be charged by the process of conduction or induction. देखिए, ये डिटेक्ट करना कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव चार्ज का है, एक इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है. ओके, इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज करता है प्रोसेस ऑफ कंडक्शन और इंडक्शन. ठीक है. मेथड: लेट टेक अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप एंड टच द चार्ज ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड ऑन द clip of the electroscope. If the aluminum strip in the electroscope diverge further, this indicates that the test object carries charge of the same nature, that is the object tested is negatively charged. But if the strips come closer to each other, then the object is carrying the charge of opposite nature, that is it is positively charged. Repeat the same by using the positively charged electroscope and result obtained will be vice versa. देखिए, अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और उसे टच किया जाता है चार्ज ऑब्जेक्ट से, तो वो उसे कैसे टेस्ट किया जाएगा? क्लिप या फिर एक जो क्लिप होती है इलेक्ट्रोस्कोप की उसके थ्रू उसको टेस्ट किया जाएगा. ओके, अगर एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है वो इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज है तो ये इंडिकेट करता है कि जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो कैरी करते हैं चार्ज सेम नेचर के. ओके, जैसे कि मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो टेस्ट किया जा रहा है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रिप्स है जब वो क्लोज आती है एक दूसरे के तो उन ऑब्जेक्ट्स को कैरी करती है ऑपोजिट नेचर में, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, अब इसको सेम वे में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जो होते हैं वो रिजल्ट करते हैं इसी तरीके से, तो ये वाइस वर्सा वर्क करता है. ओके, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज made a special kite from silk cloth which was flown using a silk thread. He tied a metallic key to silk thread. On reaching into the silk, kite and thread got wet. The key became hot and he received a shock. When there was a flash of lightning, it is due to the charge in clouds was observed by silk kite and which was passed through the wet silk thread to the metallic key. This experiment proves that there is charge in clouds and the lightning is produced as a result of striking of the charges. He included that the lightning and the mirror sparks produced in our clothes. If you remove your nylon clothes in the dark, you will see tiny sparkles and hear a cracking sound. Are one of the same thing. Okay, देखिए,
जो स्टोरी बताई गई है कि लाइटनिंग की स्टोरी क्या है, तो यहाँ पे एक मैन है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, उन्होंने एक स्पेशल काइट बनाई थी जो कि सिल्क क्लॉथ से बनाई गई थी। ओके, तो उसे एक थ्रेड से फ्लोन किया गया था, जो थ्रेड भी किस चीज़ की थी, सिल्क की ही थी। ओके, तो उन्होंने एक मेटेलिक की को टाई किया था उस पे सिल्क थ्रेड से। ओके, तो जब वो स्काई में गई तो वहाँ पर जाके जो थ्रेड है वो गीली हो गई। ओके, तो ये जो की है, ये वो जो की है वो क्या हो गई, हॉट हो गई। ओके, जिसकी वजह से उनको क्या लगा, शॉक लगा। नाउ अब क्योंकि फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हुई, वहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग थी और इसकी वजह से एक चार्ज आया क्लाउड्स में जो कि ऑब्जर्व किया सिल्क क्लॉथ ने, जिसके थ्रू पास हुआ करंट। ओके, मेटेलिक की में। नाउ ये एक्सपेरिमेंट था जो कि ये चीज़ प्रूव करता है कि जब क्लाउड्स चार्ज होते हैं, उनमें लाइटनिंग आती है तो वो माइनर स्पार्क्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे क्लॉथ्स में भी दिख सकते हैं। अगर हम रिमूव कर दें नायलॉन क्लोथ्स को और डार्क में खुद को देखें तो टाइनी स्पार्कल्स हमें दिखाई देंगे क्रैकिंग के। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी लाइट। ओके, लाइटनिंग का प्रोसेस क्या है, जब स्टॉर्मी नाइट होती है तो उसमें लाइटनिंग का प्रोसेस क्या होता है। नाउ prior to the thunderstorm, there is an upward movement of air currents while the water droplets move downwards. Due to their strong movement, positive and negative charges get separated from each other. Positive charges get accumulated near the upper regions of the clouds, whereas negative charges get accumulated near the lower regions. Thus, due to induction process, the positive charges also accumulate on the ground. Once the magnitude of the charge increases, air is no longer able to resist the flow of charge through air is an insulator. Okay, देखिए, जब थंडरस्टॉर्म आने वाला होता है तो जो करंट्स की मूवमेंट होती है, एयर करंट्स की जो मूवमेंट होती है वो अपवर्ड होती है, जहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड आती हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होती है इसके टाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं जब वो अपर रीजन क्लाउड्स के पास होते हैं, वहीं पे जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं जब वो लोअर रीजन के पास होते हैं। ओके, ऐसा होता है क्योंकि जो इंडक्शन प्रोसेस है वो पॉजिटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट करता है ग्राउंड पर। ओके, एक बार जो मैग्नीट्यूड है वो चार्ज हो जाएंगे, वैसे ही वो इंक्रीज होते रहेंगे चार्ज होना। ओके, तो एयर जो है वो ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाती है फ्लो को चार्जेस के। ओके, नाउ क्योंकि एयर जो है वो एक इंसुलेटर है। ओके, नाउ then the negative charges meet the positive charges on the ground, producing spark of bright light followed by the sound. This spark of bright light is known as lightning and the process is called electric discharge. An electric discharge may occur between two clouds with unlike charges or between the cloud on the ground. ओके, देखिए, ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्जेस से आके मीट करते हैं, मिलते हैं ग्राउंड पर, जहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं स्पार्क्स और ब्राइट लाइट। ओके, जो कि साउंड्स के थ्रू फॉलो की जाती हैं। नाउ ये जो स्पार्क्स हैं ब्राइट लाइट की, इसे हम लाइटनिंग कहते हैं। ओके, और ये प्रोसेस जो है इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। नाउ सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के टाइम पे क्या क्या सेफ्टी आपको फॉलो करनी चाहिए। नाउ लाइटनिंग इज अ डेंजरस फेनोमेनन, इट कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ट्रीज और बिल्डिंग्स इट कॉजेस फायर. व्हेन इट स्ट्राइक्स ह्यूमंस और एनिमल्स दे एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड electrocution. As lightning is a natural phenomenon, we cannot do anything to prevent it from happening. There are different safety measures that can be taken during lightning strikes. Okay, देखिए, lightning एक dangerous phenomena है और जब भी lightning ground पर आती है, अगर वो trees पर woods पर आ रही है तो उसकी वजह से जो trees है वो fire catch कर सकते हैं, humans पर या फिर animals पे आ रही है तब भी वो electric shock को महसूस कर सकते हैं उसके थ्रू। ओके, नाउ लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं। इससे प्रिवेंट होने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम ये देखें। आउटसाइड द हाउस, हाउस के बाहर क्या क्या कर सकते हैं। डू नॉट रिमेन इन द ओपन प्लेस, टेक शेल्टर इनसाइड अ बिल्डिंग और इफ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज.
Stay away from tall trees, metallic objects and poles, open vehicles like motorbikes, tractors, open cars or machineries are also not safe. Okay, देखिए अगर आप घर के बाहर हैं तो किस तरीके से सेफ्टी अपने लिए रख सकते हैं, जैसे कि जो ट्रीज़ हैं उनके आसपास आपको नहीं खड़े होना है, शॉर्ट ट्रीज़ के नीचे आपको शेल्टर लेना है, ओके। और अगर टॉल ट्रीज़ से दूर है तो फिर आपको और कुछ नहीं दिख रहा है तो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो है उनसे भी दूर रहना है, जैसे कि आपकी व्हीकल्स हो गई, मोटर बाइक्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, ओपन कार्स हो गए, ओके। इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। नाउ डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर अ ट्री इन केस इट गेट्स स्टक बाय लाइटनिंग. There is dangers of getting burnt. Tall buildings and trees provide an easy path for the lightning of enter the ground. Okay, देखिए जो अगर आपको ट्रीज़ के अंडर खड़े नहीं होना, सबसे पहली चीज़ तो यही है, ओके। क्योंकि अगर आप उसके नीचे खड़े हो गए और लाइटनिंग हुई तो उसकी वजह से आप खुद भी जल सकते हैं, ओके। नाउ टॉल बिल्डिंग्स जो हैं उनके नीचे आप खड़े हो सकते हो, ओके। वो लाइटनिंग जो होती है वो बिल्डिंग्स के अंदर जल्दी से अटैक नहीं करती हैं, ओके। ईजी पाथ नहीं होता है उनके, उसमें ईजी पाथ नहीं होता है, इसलिए एंटर नहीं कर पाती हैं, ओके। डू नॉट कैरी एन ओपन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स के टाइम पर ओपन अम्ब्रेला लेकर नहीं चलना है आपको, ओके। स्टे अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पोन्ड्स, लेक्स एंड स्विमिंग पूल्स एज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं उनसे आपको दूर रहना है क्योंकि वाटर जो होता है ये एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ओके। नाउ if one is in an open place and there is no place to take shelter, it is better to squat on the ground with the head lowered. This position is least prone in terms of area struck by lightning. Okay, देखिए अगर आपके आसपास आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसमें आप शेल्टर ले सकते हैं तो आपको क्या करना है, एक पिक्चर दिख रही है आपको सेफ पोजीशन ड्यूरिंग लाइटनिंग की, ओके। इस तरीके से आपको बेंड होकर के बैठ जाना है, ये सेफ पोजीशन होती है, ओके। नाउ इनसाइड द हाउस के अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं, ओके। देखिए स्टे अवे फ्रॉम डोर्स एंड विंडोज एंड कीप देम शट. During thunderstorms, one should not use electrical gadgets, telephones, etc. It is better to switch off all the electrical appliances. Do not take shower or make contact with running water or a metallic tap during thunderstorm. Avoid using corded telephone or touching electrical wires or metal pipes. Use mobile phones or cordless phones instead. Okay, देखिए आपको डोर्स और विंडोज से दूर रहना है, उन्हें शट करके रखना है। आपके घर में अगर रनिंग वाटर है, टैप है, मेटालिक टैप है, उनसे दूर रहना है। रनिंग वाटर को यूज़ नहीं करना है उस टाइम पे, ओके। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उन्हें टर्न ऑफ करके रखना है, जैसे कि टेलीफोन्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो गए, ओके। आपको शावर नहीं लेना है उस टाइम पर, ओके। नाउ लाइटनिंग conductor. To prevent tall buildings from lightning, a lightning rod is fitted. It is a device which consists of a metal rod with spikes at the top and a copper plate attached at the lower end beneath the ground. The copper plate is buried deeply inside the earth and a metal rod is a little taller than the building. So, if the lightning strikes, the electrical discharge flows directly to the earth through the metal rod without causing any damage to the building. This idea of lightning rod was also developed by Benjamin Franklin. Okay, देखिए खुद को टॉल बिल्डिंग से बचाने के लिए लाइटनिंग के टाइम पे, ठीक है, तो आपको कुछ रोड्स होती हैं जो कि लाइटनिंग रोड्स होती हैं जो कि फिटेड होती हैं टॉल बिल्डिंग्स में, ओके। ये एक डिवाइस होता है जिसमें मेटल रोड होती है, स्पाइक्स होती हैं उनके टॉप पर और एक कॉपर प्लेट होती है उनके लोअर बीनीथ वाले पार्ट पर, ओके। नाउ जो कॉपर प्लेट होती है वो ब्यूरीड होती है अर्थ के अंदर और मेटल रोड जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है बिल्डिंग से, ओके। नाउ जो लाइटनिंग अगर स्ट्राइक कर रही है उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो फ्लो करता है डायरेक्टली कहाँ पर, अर्थ में, ओके। और मेटल रोड को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होता, उसकी वजह से बिल्डिंग को किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होता है, ओके। नाउ ये जो लाइटनिंग रोड है ये भी डेवलप की गई थी किसके थ्रू, मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन के थ्रू। नाउ अर्थक्वेक्स, a sudden shaking or trembling of the earth that occurs suddenly for a short while is called an earthquake. You might have heard about some recent or massive earthquakes: Nepal 2005, Japan 2011, Indian Ocean 2004, Bhuj, India 2001, etc.
In these earthquakes, thousands of people were killed or displaced, and hundreds of houses and buildings collapsed, causing extensive damage to life and property. देखिए, सडन शेकिंग जब होती है अर्थ की, उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। तो काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे अर्थक्वेक्स आए हैं, जैसे कि इंडियन ओशन है 2004 में आया था, नेपाल में 2015 में आया था, जापान में 2011 में, भुज इंडिया में 2001 में आया था। तो जब ये अर्थक्वेक्स आए थे तो बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब हुई थी, हाउसेस डैमेज हुए थे, प्रॉपर्टीज़ डैमेज हुई थी। ओके, नाउ it is a natural phenomena that causes large scale destruction of life and property. The scientists still unable to predict an earthquake before its occurrence, and even through they can warn us about a thunderstorm developing in an area that accompanies lightning and cyclone. देखिए, अभी मैंने बताया अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज होती है। ओके, साइंटिस्ट जो है अब तक नहीं डिस्कवर कर पाए हैं कि किस तरीके से अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उस चीज़ के बारे में जान पाए, जिस तरीके से वो साइक्लोन के बारे में पता कर पाते हैं या फिर लाइटनिंग के बारे में पता कर पाते हैं, वेदर के बारे में पता कर पाते हैं। ओके, नाउ कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन अर्थ. Earth consists of three layers: crust, mantle and core. Core is divided into two sublayers: inner core, outer core. देखिए, अर्थ के 3 लेयर्स होते हैं: क्रस्ट, मेंटल, कोर, और कोर भी फिर सब डिवाइडेड है 2 लेयर्स में, जिसको हम बोलते हैं इनर कोर और आउटर कोर. लिथोस्फीयर इज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल together. It is made of many fragments called tectonic plates, which are in continual motion. When these plates overlap on another or collide with each other, they cause a disturbance in the earth crust, resulting in earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis. Okay, देखिए, लिथोस्फीयर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रस्ट के द्वारा. ओके, ये अपर लेयर होता है, मेंटल के साथ बना हुआ होता है, इनके बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स बने हुए होते हैं जिसको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये मूवमेंट करती हैं अर्थ क्रस्ट पे. ओके, जो ये ऊपर नीचे इस तरीके से मूवमेंट करती है. जब ये कोलाइड होती हैं एक दूसरे से तो उस टाइम पर क्या होता है कि अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती है या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं. ओके, नाउ अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम एंड आर यूजुअली नॉट नोटिस्ड. Major earthquakes occur rarely, but they cause heavy damage to buildings, bridges, dams and human life. An earthquake may be caused due to the following: volcanic eruption, underground nuclear explosion, movement of tectonic plates. Okay, देखिए, अर्थक्वेक्स जो हैं ये यूजुअली अकर नहीं होते, बहुत ज़्यादा रेयरली अकर होते हैं. अगर यूजुअली अकर होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया भी है कि नहीं, लेकिन रेयरली जब ये अकर होते हैं तो ये मैसिवली बहुत अकर होते हैं और उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी और लाइफ को डैमेज करते हैं. ओके, नाउ देखिए, अर्थक्वेक की वजह से क्या रीज़न है कि अर्थक्वेक आ रहे हैं. एक रीज़न है वॉल्केनिक इरप्शन, दूसरा है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या फिर तीसरा है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट. ओके, नाउ earthquakes due to tectonic plates. The tectonic plates are floating like icebergs on the top of the molten rocks inside the earth. The movement of the continental tectonic plates is called continental draft. During the continental drift, plates move and rub against each other. If the tectonic plates get interlocked, the pressure beneath these plates start building up. Okay, देखिए, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं ये आइसबर्ग्स की तरह फ्लोट करती हैं मॉल्टन रॉक्स के ऊपर. ओके, अर्थ के नीचे मॉल्टन रॉक्स के ऊपर ये जो मूवमेंट होती है कॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक प्लेट्स की, इन्हें हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं. ओके, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के टाइम पे जो प्लेट मूवमेंट होती है वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करती हैं एक दूसरे को. ओके, अगर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इंटरलॉक हो जाती हैं तो जो प्रेशर बनता है इनके नीचे वो बिल्ड अप होना शुरू हो जाता है. Okay, this high pressure puts a strain on the joints of the plates. When sufficient pressure builds up, the plates rip away, releasing a tremendous amount of energy in the form of waves which create tremors.
The sudden movement of plates and release of energy is called the earthquake. The waves produced during earthquake are called seismic waves. Okay, देखिए जो sudden movement होती है प्लेट्स की और एनर्जी रिलीज करती है उसे हम earthquake कहते हैं, और उसी तरीके से जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं earthquake के टाइम पे उन्हें हम seismic waves कहते हैं. Okay. The point or place from where the earthquake originates is called seismic focus. It is mostly located near the boundaries of the tectonic plates. The point on the earth's surface just vertically above the seismic force focus is called epicenter. The boundaries of the tectonic plates are high risk areas where earthquake is most likely to occur. There is known as seismic or fault zones. Okay, देखिए जो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे हम कहते हैं सेस्मिक फोकस. ओके, ये मोस्टली बाउंड्रीज जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं उनकी जो बाउंड्रीज होती हैं वहां पर लोकेटेड होते हैं, और ये जो पॉइंट होता है अर्थ के सरफेस का ये वर्टिकली सेस्मिक फोकस के ऊपर होता है और इसे एपिसेंटर बोला जाता है. ओके, तो जो बाउंड्रीज होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की वो हाई रिस्क एरियाज होते हैं अर्थक्वेक के, जहाँ पे मोस्टली अर्थक्वेक अकर कर सकते हैं. ओके, इन्हें हम सेस्मिक या फिर फोल्ड जोन्स कहते हैं. नाउ in India, the earthquake prone areas are Kashmir, Western and Central Himalayas, whole of Northeast run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plains. Okay, ये सारे areas जो हैं ये earthquake prone areas हैं. कश्मीर, Western and Central Himalayas, okay, run of Kutch, ये सारे आपके earthquake prone areas हैं. Now, although earthquakes are natural phenomena, some human activities such as mining, underground nuclear explosions, etc. can cause shifting of tectonic plates that may cause tremors. Natural phenomena such as volcanic eruptions also sometimes earthquakes. Okay, देखिए अर्थक्वेक जो है ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि आपकी माइनिंग है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, इसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी शिफ्टिंग हो सकती है. ओके, जिसकी वजह से नेचुरल फिनोमेना जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक आ सकता है. ओके, नाउ here measuring intensity of earthquakes. Okay, the intensity of the magnitude of an earthquake is dependent on the energy released during the earthquake. देखिए जो मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी होती है एक अर्थक्वेक की वो डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है अर्थक्वेक के टाइम पर. ओके, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु स्टडी सिस्मोलॉजी आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट्स. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड seismic waves is called seismograph. It is simple pendulum suspended with the string on and a pen attached to its bob upside down. A paper roll is placed on the rotating drum that is fixed to the base of the seismograph. When earth shakes, the base of the seismograph also shakes and the tip of the pen records this movement on the graph paper. Okay, देखिए साइंस जो डील करती है अर्थक्वेक की स्टडीज़ को उसको हम बोलते हैं सीस्मोलॉजी, और जो लोग सीस्मोलॉजी पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं सीस्मोलॉजिस्ट. ओके, अब अर्थक्वेक को जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम सीस्मोग्राफ बोलते हैं. ओके, साइड में देख सकते हैं सीस्मोग्राफ किस तरीके का दिखता है. ओके, इसमें जो अटैच होती हैं चीज़ें, एक सिंपल पेंडुलम होता है, स्ट्रिंग होती है, पेन होता है जो कि बॉब अपसाइड से अटैच होता है, डाउन से भी. ओके, एक ग्राफ होता है पेपर रोल का जो कि रोटेटिंग ड्रम की के पास प्लेस होता है और फिक्स्ड होता है बेस से सीस्मोग्राफ के. ओके, जब अर्थ शेक करता है तो जो बेस होता है सीस्मोग्राफ का वो भी शेक करता है और इसकी टिप जो होती है पेन की वो रिकॉर्ड करती है मूवमेंट को ग्राफ पर. ओके, इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है अर्थक्वेक को. नाउ by studying the seismograph patterns of graph paper, scientists can construct a complete map of earthquake and estimate the energy released. Magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. Charles Richter invented the Richter scale in 1935. The intensity of the earthquake is measured on a rotating scale of 0 to 9. The table shows the intensity of earthquakes on the Richter scale. Okay, देखिए
सीस्मोग्राफ को स्टडी करने के बाद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया है कंप्लीट मैप अर्थक्वेक का, जिसके जब एनर्जी रिलीज होती है उसका। ओके, नाउ जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो मेजर किया जाता है रिचर स्केल पे, जिसको इन्वेंट किया था रिचर स्केल ने 1935 में। ओके, जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो मेजर की जाती है किस स्केल पर, 0 to 9 तक के स्केल पर मेजर की जाती है। ओके, अब नीचे एक टेबल बताया गया है जिसपे हम इंटेंसिटी अर्थक्वेक की देख सकते हैं रिचर स्केल पे। नाउ ऑन द रिचर स्केल वी कैन क्लासिफाई अर्थक्वेक इन द फॉलोइंग वेज। नाउ 0 to 2 unnoticed, 0 to 4 felt but not damaging, 4 to 6 moderate prone to structural damages, 6 to 8 severe, 8 to 9 very severe। ओके, देखिए जो 0 to 2 तक का स्केल होता है उसको आप नोटिस नहीं करेंगे। ओके, उसका पता भी नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आया है। 2 to 4 का होगा, फील होगा लेकिन डैमेजिंग नहीं होगा। 4 to 6 का जो होगा वो मॉडरेट होगा, मे भी कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो भी सकती है। ओके, 6 to 8 का बहुत ज़्यादा सेवर होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो सकती है। और 8 to 9 तो उससे भी ज़्यादा होता है, तो लोगों की लाइफ जा सकती है, प्रॉपर्टीज डैमेज हो सकती हैं। ओके, नाउ so destructive earthquakes occur at a magnitude which is higher than 7. The magnitude of Bhuj and Kashmir earthquakes back in 2005 were higher than 7.5. Okay, तो जो earthquakes हमने measure किए हैं वो 7 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कश्मीर और भुज में जो measure किए गए थे वो 7 से ज़्यादा मतलब कि 7.5 थे। Okay, destructions caused by earthquakes. Earthquakes can cause massive damage to life and property. Some hazards caused by earthquakes आर एज फॉलोज। ओके, देखिए अर्थक्वेक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है लाइफ प्रॉपर्टीज से, लाइफ और प्रॉपर्टीज़ में। तो कुछ हज़ार्ड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जैसे कि डैमेज टू द टाउन्स एंड सिटीज़, पीपल गेट ब्यूरिड अंडर द डेब्रिज ऑफ फॉलन बिल्डिंग्स, डैमेज टू द मैन मेड स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड rails. Strong vibrations caused by the earthquake can burst gas pipes and cylinders, causing fire in the houses, mines and factories. It can also cause forest fires. Change in the landscape of a place by deforming the ground surface. Tsunamis are generated when the earthquake occurs under an ocean. The tsunami is a series of waves in a water body caused by the displacement of a large volume of water, generally from a ocean. Landslides occur when the tremors are caused in mountainous regions. Electric poles, telephone wires and trees get uprooted due to high intensity earthquakes. Groundwater pipes get damaged too. Okay, देखिए here जो टाउन्स और सिटीज़ होती हैं उनमें डैमेज होता है, लोग जो भी चीज़ें डैमेज हो रही होती हैं उनके नीचे ब्यूरी हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, बिल्डिंग्स है, रोड्स है, रेलवेज है, ये सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जो अर्थक्वेक की हमें फील होती है उसकी वजह से गैस पाइप बर्स्ट हो सकती है, सिलेंडर्स बर्स्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आग लग सकती है और लाइफ्स डैमेज हो सकती हैं। ओके, फैक्ट्रीज में आग लग सकती है, घरों में, माइंस में, इन सारी जगहों पे आग लग सकती है। नाउ लैंडस्केप जब चेंज होता है एक प्लेस का उसकी वजह से ग्राउंड सरफेस भी डिफॉर्म होता है। ओके, नाउ सुनामीज जनरेट होती है जब भी अर्थक्वेक किसी भी ओशन के अंडर अकर करता है। ओके, एक सुनामी क्या होती है, सीरीज होती है वेव्स की, वाटर बॉडी के अंदर वो आता है और डिस्प्लेसमेंट करता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और किसी भी एक ओशन में होता है। ओके, लैंडस्लाइड्स होती हैं और माउंटेनियस रीजन्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो हट जाते हैं, टेलीफोनिक वायर्स हट जाती हैं, ट्रीज खराब होते हैं, ट्रीज हट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। ओके, अपरूट हो जाते हैं। नाउ ग्राउंड वाटर पाइप्स भी डैमेज होती हैं इससे। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स. Earthquakes cannot be predicted by scientists. Hence, certain safety measures need to be adopted to minimize the devastation caused by earthquakes and reduce damage to life and property. These precautions need to be followed, especially by people living in the seismic zone, that is, areas which are more prone to earthquakes. Okay, देखिए earthquakes जो हैं वो scientist के द्वारा predict नहीं किए गए हैं. Okay, तो certain safety measures जो हैं वो adopt नहीं किए जा
सकते, उसके पहले नहीं पता चल सकता, जैसे कि फ्लड्स का, सुनामीज का पता लगाया जा सकता है। ओके, उस तरीके से हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइम पर पीपल सिस्मिक जोन्स का यूज़ करते हैं, वो एरियाज़ होते हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ होते हैं। ओके, नाउ सम प्रिकॉशंस विच वी कैन टेक एज फॉलोज। देखिए क्या क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं इस टाइम पे। इन सेस्मिक जोन्स बिल्डिंग शुड बी डिजाइन्ड बाय क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स सो एज टू मेक देम क्वेक प्रूफ। पीपल लिविंग इन हाई सिस्मिक जोन मस्ट कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेज विद वुड। Tall buildings should be avoided in these areas. Fox bookcases, cabinets, cupboards and shelves securely to the walls so that they do not fall down. Ceiling fans, air conditioners and air coolers must be secured firmly so that they do not fall down during an earthquake. Houses and buildings should not be constructed on riverbeds, landfills, etc. as the soil here is loose, slight tremors are powerful enough to damage building in these areas. Keep firefighting equipment handy as there is a change in fire during the earthquake. Okay, देखिए सिस्मिक जोन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर बिल्डिंग्स इस तरीके से आर्किटेक्ट्स को डिज़ाइन करनी चाहिए कि वो क्वैक प्रूफ हो। ओके, नाउ हियर सिस्मिक जोन्स जो हैं उनमें जो हाउसेस हैं या वो वुड से कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए। टॉल बिल्डिंग्स नहीं बननी चाहिए। ओके, क्योंकि उन एरियाज़ में अवॉइड ही करना चाहिए टॉल बिल्डिंग्स को। फॉक्स बुक केसेस, कैबिनेट्स, कपबोर्ड्स और शेल्फ सिक्योरली वॉल्स पर रखने चाहिए जिसकी वजह से वो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेंगे। सीलिंग फैंस, एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स उनको भी फर्मली ही रखना चाहिए सिक्योर करके। ओके, कि वो नीचे ना गिरें। नाउ हाउसेज और जो बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो रिवर बेड्स की तरफ ना हो, लैंडफिल्ड्स की तरफ ना हो। ओके, और सॉइल जो है वो लूज ना हो। और हमें हमेशा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि फायर जब अर्थक्वेक आए तो उस टाइम पे अगर फायर लगे तो हमें वो चीज़ यूज़ करनी आती हो। ओके, नाउ पर्सनल सेफ्टी। The following steps need to be taken to protect yourself during the earthquake. Earthquake के टाइम पे क्या क्या steps आपको लेने चाहिए खुद को सेफ रखने के लिए? Avoid using a lift during an earthquake. Stay inside a car or bus if you are traveling. Drive slowly to a clear area away from the electrical pole or a tall building. Take shelter under a heavy table or coat. Stay there till the shaking stops. Keep away from tall and heavy objects. They may fall on you. If outdoor, stay away from buildings, electric poles, signboards and trees which may fall down. Here, now देखिए आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है? लिफ्ट अवॉइड करनी है अर्थक्वेक के टाइम पे। अगर आप बाहर हैं तो कार और बस में रहना है और स्लोली ड्राइव करके एक सेफ एरिया पे जाना है आपको। शेल्टर लेना है ऐसी जगह पे जहाँ पे हैवी ऑब्जेक्ट्स ना दिखे, जैसे कि कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ना दिखे। और आपको अगर घर पे हैं तो उस साइड तरीके से आपको टेबल के नीचे या फिर कोट के नीचे बैठ के शेल्टर लेना है। ओके, नाउ आपको हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है, टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहना है। आउटडोर हो तो बिल्डिंग से दूर रहना है, ट्रीज से दूर रहना है, इलेक्ट्रिकल पोल, साइन बोर्ड, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। ओके, नाउ रीड एट अ ग्लैंस। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Static electricity consists of charges which do not flow. Materials like glass, fur, plastic and ebonite can be charged by rubbing friction. When two bodies are rubbed against each other, they acquire equal and opposite charges. If a positively charged body repels a test object, it is positively charged. If a negatively charged body repels to a test object, it is negatively charged. A body can be charged by friction, conduction or induction. Clouds also get charged during a thunderstorm. When negative charges meet positive charges, thunder and lightning are produced. Lightning conductors are installed and tall buildings to protect them from lightning. The earth consists of three layers: crust, mantle and core. The core is further divided into outer core and inner core. The amount of divergence in an electroscope is measured as the amount of charge. The process of transferring charge from a charged body to earth is called discharging. The phenomenon of producing sparks by collision of charges is called electrical discharge, and it can take place between two or more clouds or between clouds and
Earth. A gold leaf electroscope is a special electroscope used in science labs. An earthquake is sudden shaking of the earth which causes vibrations. Tectonic plates are continuously moving with respect to one another. When they brush past one another or collide, they cause disturbance on the earth's crust. This movement results in earthquake, volcanic eruption and tsunami. The epicenter is the point of earth's surface vertically above the seismic focus. Seismic regions are the regions that are geologically prone to the earthquakes. The magnitude of an earthquake is measured on the scale called the Richter scale. On the basis of the reading of the Richter scale, earthquakes are classified into unnoticed, felt but not damaging, moderate, severe and very severe. Certain safety measures need to be adopted to minimize the devastation caused by the earthquakes. Key terms to know: charged objects, objects that have acquired charge; electrostatic force, force exerted by charged objects of each other; electroscope, a device which is used to detect and test the nature of electrical charges; earthing and grounding, the process of transfer of charges from the charged object to the earth; lightning, electrical charge from clouds; tectonic plates, the fragments, pieces into which the earth's lithosphere is divided; earthquake, a sudden shaking or trembling unto the earth that occurs for a very short time; seismic zone, this region in which slides in earth's crust are more common; seismic waves, waves of high energy which arise due to sudden ripping of two tectonic plates; seismic focus, the point or place from where the earthquake originates; epicenter, region closer to the focus of the earth's surface; seismology, study of earthquakes; seismologists, scientists who study earthquakes; Richter scale, a scale on which magnitude of an earthquake is measured; seismograph, the instrument used to detect and record seismic waves; fault zone, the boundaries of tectonic plates which are higher risk areas of earthquake. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.